ओके ओके ओके, लेट्स फिगर आउट कि क्या है ये, व्हाट इज इट। मैंने आज तक नहीं देखी इसकी, कोई भी रील नहीं देखी मैंने भाई। लेट्स फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, लेट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन हिटलर। To buy it now. So let me introduce you to the books I finished this week. You might wonder how I finished four books in a week. Actually, I started the book Thief about 3 weeks ago and finished it on Monday. I will talk about it later, but first let me read something to you. They say that one gets mystery, but I must offer you a different point of view on that one. To me, what is like a new boss who expects the impossible. मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। He stands over your shoulder, repeating one thing incessantly. क्या इसने क्या बोला? So सबटाइटल लिखे हैं। I ओ think I ओके have to ओके, buy ओ शाउट, शाउट टू डीजी लोन। it now. So let डन me गिव अ introduce you to the हम्म books I finished this week. हम्म। You might wonder how I हाँ, आई कैन डेफिनेटली रीड वाइट सबटाइटल ऑन वाइट बुक। आई कैन रीड ब्रो। सही है, गुड, स्मार्ट स्मार्ट लेडी, आई लाइक इट। finished four books in a week. Actually, I started the book Thief about 3 weeks ago and finished it on Monday. I will talk about it later, but first let me read something to you. लेट मी रीड समथिंग टू यू। ओके ओके, They फिर मैं say रीड। that war gets mystery, but I must offer you a They say that war is death's friend. To me, war is like the new boss who explains the impossible. different point of view. Who expects the impossible। देखो यहाँ पे explains लिखा है, यहाँ पे expects लिखा है। देखो, अगर मैं अभी सबटाइटल पढ़ता तो मेरा तो हो जाता अभी, हैं, मेरा तो हो जाता। He stands over your shoulder repeating one thing incessantly. Get it done, get it done. So you work harder, your job, you get the job done. The boss, however, does not thank you, he asks for more. Okay, what does it mean? You want that one. To me, war is like a new boss who expects the impossible. He stands over your shoulder, repeating one thing incessantly. Get it done, get it done. यार देखो, मैं कोई जीनियस तो नहीं हूँ यार, लेकिन थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता है मेरे को। ए फॉर एप्पल, बॉल, बी, ये सब तो आ जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वगैरह आता है मेरे को। मुझे घंटा नहीं समझ में आया उसने क्या बोला। आई स्वेयर टू गॉड, मेरा ऑडियो इंटरफेस है ऑडियंट EVO 4 2x2, 15,000 रुपये का। पॉलीटेक्निक का M50X, ठीक है, 12,500 रुपये के हेडफोन्स। 20,000, 20,000 रुपये, नहीं 20 25 30,000 जो भी है मुझे नहीं पता। 25 30,000 रुपये खर्च करने के बाद मुझे नहीं समझ आया उसने क्या बोला। मेरे कान सही हैं ठीक ठाक, भगवान की दया, टचवुड। आई डोंट नो व्हाट शी सेड, ठीक है। I read Rosarita by Amita Desai. It was a little tough for me, maybe because of the language and the pattern of writing. The story is about an Indian girl who travels to Mexico, where a random woman tells her things about her mother that she had never heard before. She thought her mother is a housewife, but when she heard something different about her mother, that her mother was a painter and she is a different person from a housewife. And she tangled in this mystery and I finished it in 2 days. Note, I love books that make my brain work a little harder. Then I read The Raven by Edgar Allan Poe. And first I read about the author that he went through a lot of personal loss, his mother, foster mother, and later his wife. समझ में तो अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट सुनने में अच्छा लग रहा है। All died due to tuberculosis. And the poem is about a grieving man who is visited by a mysterious raven that repeats only one word, nevermore. And I'm not very good at describing poetry, but it's about how he slowly descends into madness. Then I read Sister Kavita by Rabindranath Tagore. And you know, the privilege of reading literature in मैं ट्रोल नहीं कर रहा, आई स्वेयर ऑन माई लाइफ आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वन सेंटेंस। और मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। दिस इज़ नॉट अबाउट हर एक्सेंट, दिस इज़ नॉट अबाउट हर रील्स, दिस इज़ जेन्युइनली just about how bad the mic quality is. ठीक है, this is just about how bad the mic quality is. It is not about the, it's the reverb, I don't know what it is.
मैं तुम्हें एक्चुअल में बताऊँ, तुम सुन के बड़ा अजीब लगेगा। कायदे से अगर आप फ़ोन दूर रखते हो और आप वीडियो बनाते हो तो आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। ऐसी आवाज़ ना, ऐसी ऐसी क्लिपिंग वाली आवाज़ तब आती है जब आप ऐसे बात करते हो, हेलो हेलो, ये वाली ये आवाज़ आ रही है मेरे को। वो नहीं है, वो अंकल दादा लोग नहीं होते जो अपने माइक को अपनी मुंह के अंदर डाल के एकदम गले डीप थ्रोट करते हुए बात करते हैं, ये वैसी आवाज़ आ रही है मेरे को। ठीक है, बट ठीक है, I mean, okay, but like, what does she do? She does book reviews. Like, okay, let's make it simple. Why do people hate her? पहले मुझे बताओ, इसको लोग hate क्यों कर रहे हैं? क्या 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 लोर है इसका? You probably wondering why I am talking in English when my English is too bad. And there's a reason behind it. You can tell my how I am dressing that I live in a village. And here people actually judge women who make videos. It can be a dancing video or cooking video or anything. They will judge you so hard that it will be hard for you to live. So I am just playing safe side. I know my English is bad, but I will still talk in English. So even if the video reach to someone from my village, they don't understand it because there are 90% people who don't understand English, and this is good for me. And there is another reason too. I want to reach it many people. Life of Pooja is incredibly smart. ठीक है, और ये सब कैलकुलेटेड है, बट शी इज़ नॉट एन इंडस्ट्री प्लांट। शी इज़ नॉट एन इंडस्ट्री प्लांट, बट शी इज़ नॉट नाइव। द ट्रूथ लाइज इन द मिडल। ठीक है, इज इट डेलिबरेट? यस। शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी नोज व्हाट टू डू, हाउ टू मोनेटाइज, हाउ टू टॉक। मैं तुमसे अब एक फिलोसफिकल सवाल पूछता हूँ, बड़ा कॉमन सेंसिकल स्मार्ट, ठीक है, सवाल, ठीक है, ठीक है। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, ध्यान से समझो, ठीक है। मान लो एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है, ये इंस्टाग्राम क्रिएटर है, इसने एक व्लॉग बनाया और वो व्लॉग था वेडिंग का व्लॉग, वेडिंग, ठीक है। और ये व्लॉग वायरल हो गया, बहुत सारे लोगों ने इसको, मतलब रील बनाई, लेट्स से व्लॉग नहीं, रील बनाई, रील वायरल हो गई, वेडिंग रील बनाई इसने, वायरल हो गई, कोई डांस कर रहा था, कुछ तो कर रहा था, वायरल हो गई। अब इससे इसको +10 के फॉलोअर्स मिल गए, पहले इसके 1 के फॉलोअर्स थे, ठीक है, ठीक है। अब शादी तो ऐसी है चीज़ है नहीं कि आप हर हफ्ते रिक्रिएट कर लो। अब क्या करे ये आदमी 10,000 फॉलोअर्स के साथ, क्या करेगा ये आदमी या ये औरत? वेल, खुद की शादी तो कर नहीं सकते, चलो अपनी दोस्त की शादी में चले जाते हैं। दोस्त की शादी, लेट्स से 1 महीने बाद दोस्त की शादी है, 1 हफ्ते बाद दोस्त की शादी है, उसका व्लॉग बना दिया, फिर से 10 के, +10 के, लेट्स से +5 के। लेकिन ये चेन कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ना। ये जो आपने कंटेंट, जिस कंटेंट के लिए आपको ये 10,000 फॉलोअर्स मिले थे, ये कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट होगा ना। समझो इस बात को। जिन लोगों की, इस लड़की का नाम है लाइफ ऑफ पूजा, लाइफ ऑफ पूजा, ठीक है। तो लाइफ, जब आपका कंटेंट होता है तो लाइफ स्टाइल कंटेंट है आपका, तो लाइफ में चीज़ें होती रहनी चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू मेक कंटेंट। एंड सत्यता ये बात है कि ज़िंदगी मंडेन होती है, स्पेशली गांव की ज़िंदगी बहुत मंडेन होती है। गांव की ज़िंदगी बहुत मंडेन होती है। आपके हर रोज़ आपके यहाँ कोई हनी सिंह आके कॉन्सर्ट नहीं कर रहा है, कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कुछ वो नहीं। आप गांव की ज़िंदगी बड़ी शांत होती है, ठीक है, हर दिन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो कभी ना कभी आपका ये जो कंटेंट है, ये मंडेन चला जाएगा, यू नो। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट। दिस इज कॉमन सेंस, ये कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं, दिस इज कॉमन सेंस। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, 1 लाख हो जाए, आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कंटेंट, जानबूझ के चीज़ें करनी पड़ेगी।
to be able to produce content, to be able to keep growing. ठीक है, और अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो ये 50,000 वाले आपको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आप कुछ डाल ही नहीं रहे, आपको रील ही नहीं बना रहे, आप कुछ एंगेजिंग कंटेंट नहीं डाल रहे, वो फॉलो क्यों करें, आपको छोड़ के चले जाएंगे. So at some point of time, you have to start manufacturing content, and that's what she's doing. She's deliberately manufacturing content. She, and I would go as far as to say, देखो मैं प्रूफ देने नहीं बैठा, ठीक है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरी हिस्ट्री है, इंटरनेट ने चीज़ें बोली हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स ने चीज़ें बोली हैं, ठीक है, ये हिस्ट्री अभी स्ट्रीमिंग से नहीं है, स्ट्रीमिंग के पहले की हिस्ट्री है. मैंने जो अपना एनालिसिस दिया था डे 1 पे वो हमेशा सही निकलता है, ठीक है. तो ये कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, पूरी लाइव स्ट्रीम्स पे है, प्लस इंटरनेट के पहले ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ट्रैक रिकॉर्ड है. तो मैं तुमको बता रहा हूँ इस औरत के पीछे इसका जो हस्बैंड है ये भी ही इज़ ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन दिस, एंड आई वुड गो एज फार एज टू से कि हर हस्बैंड इज़ प्रॉब्ली द मैनेजर हु इज़ मॉनिटरीली टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये कॉमन सेंसिकल बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कॉमन सेंसिकल बात है. लेकिन गलत पता है क्या है, गलत ये है जो इसने ये एक रील बनाई थी ना, क्या कहते हैं, जो ताना मारने वाली रील्स है और ये अपर कास्ट लोअर कास्ट वाली रील्स हैं, ये गलत है, ये गलत है. मैं बताऊँ क्यों गलत है. मोस्ट गांव के लोग ना अति अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अगर उनको पता चलता है ना उनका पड़ोसी अमीर होने वाला है, फेमस होने वाला है, आपके एल पे बैठ जाएंगे, ऐसी क्रेजी डिक राइडिंग करेंगे ना आपकी कि आपको कंधों पे उठा लेंगे. गांव में पता है जो यूनिटी होती है वो पता है कैसी होती है, अगर गांव में एक बंदा डॉक्टर बन जाए ना, पूरा गांव के लिए वो उनका भतीजा बन जाता है, भले ही वो बचपन में उसको लाठियों से मारते हो क्रिकेट खेलने के वक्त या गिल्ली डंडा खेलने के वक्त, हरास करते हो, फर्क नहीं पड़ता. डॉक्टर बन गया भाई, पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है. आईएएस बन गया, अरे भाई ये तो हमारे गांव का लड़का, हमारा भतीजा है, हमारा भांजा है, ठीक है. कोई गाँव का बंदा या बंदी हरास नहीं कर रहा आपको, कोई नहीं, ठीक है. आपके जो भी इतने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स है दिखते हैं लोगों को, कोई हरास नहीं कर रहा आपको. नेटफ्लिक्स आपको पैसा दे रहा है, आपको बड़े बड़े ब्रांड्स पैसा दे रहे हैं, कोई हरास नहीं कर रहा. सब आपके पास हाथ फैला के आएंगे कि अरे पूरे जी कैसी है, दिवाली की मिठाई खा लो, पूजा हुई है हमारे घर में, जो दिवाली 2 साल पहले थी दिवाली इनकी. जोक मार रहा हूँ, लॉजिकली मत लेना, बट यू गेट द पॉइंट, है ना. हमारा बच्चा हुआ है, ये लो बूंदे के लड्डू, बच्ची की उम्र 8 साल है, 8 साल पहले बच्ची हुई है इनकी, अभी ला के देने मिठाई है कि पूजा जी मिठाई खा लो. ये होते हैं गाँव के लोग, ठीक है, उनको काव से मालकिन हाँ वही है, ठीक है. तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि द लाइफ ऑफ पूजा प्रॉबेबली स्टार्टेड हर कंटेंट. मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि लाइफ ऑफ पूजा ने कंटेंट बनाया, अंग्रेज़ी बोलती थी कैमरा के सामने, उसने बस कंटेंट बनाया, इसको आइडिया था कि इट कैन पिक अप, दैट्स व्हाई शी चोज टू स्पीक इन इंग्लिश. क्योंकि मोस्ट लोग क्या करते हैं ना, डाइवर्सिफाई करते हैं स्टार्टिंग में ना, लोग कभी भी एक चीज़ पर स्टिक नहीं करते हैं, कोई नहीं करता. बड़े से बड़े आदमी भी स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पे, अगर आप प्रायर कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, अगर आपकी कोई प्रायर नीश और कोई पर्टिकुलर जॉनरा नहीं है, तो आप स्टार्टिंग से कभी एक स्पेसिफिक लीनियर कंटेंट नहीं बनाते, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप 5 अलग अलग चीज़ें डालते हो. कोई डांसिंग रील डाल दिया आपने, कोई इंग्लिश बोलते हुए रील डाल दी, कोई व्लॉग टाइप डाल दिया, कोई ट्रेंड टाइप डाल दिया, आप एक्सपेरिमेंट करते हो क्योंकि आपको पता नहीं ना क्या चलना है क्या नहीं चलना. बट अगर ये स्टार्टिंग से इंग्लिश बोल रही है और ये स्लाइटली इंटेलेक्चुअल या कुछ ऐसा कुछ सेमी पॉलिटिकल स्यूडो पॉलिटिकल कंटेंट बना रही है या फिलोसॉफिकल या लेट्स से लिटरेचर रिलेटेड कंटेंट, देन इट वाज डेलिबरेट, इट वाज नॉट रैंडम, इट वाज डेलिबरेट. सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, अब क्या हुआ, अगर उसने ये कंटेंट बनाया और लेट्स से ये किसी सो कॉल्ड आपके अमीर प्रिविलेज लोगों के पास फीड पे चला गया, क्योंकि बहुत पुश करता, मुझे भी आता है. मेरा गोट आदमी मैं आपको बता दूं, अगर कोई गोट है इस फील्ड में, ठीक है, इफ़ यू डोंट नो दिस गाय यू डोंट नो बॉल, ठीक है. ओरिजिनल सीन दुर्गेश नाइक का अपने दुकान में है, आज शनिवार है, पूरा भाई हम बहनों दुर्गेश नाइक, बजरंगबली हवाई और ओरिजिनल गोट, माय गोट. भाई हम बहनों, मैं इसी तालाब में नहाता हूँ यार, माँ कसम, अपने बाप की कसम, अपनी माँ की कसम, मैं इसी तालाब में नहाता हूँ.
और देखो मेरा सीताराम। माई गोट, माई फकिंग गोट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ना जब आप कंटेंट बना रहे होते हो और आप से अनपढ़ गंवार हो, ठीक है, नॉट यूजिंग एट एज अ स्लर, यूजिंग एट एज अ सैड रियलिटी, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप स्पैम करते हो। तो मुझे यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्पैम है, क्योंकि 144 पोस्ट इज़ नॉट स्पैम अनलेस शी हैज़ डिलीटेड ओल्ड पोस्ट, मुझे नहीं पता। 144 इज़ नॉट स्पैम एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इसने एक नीच सेटअप करी एंड दैट मीन्स कि शी हैड अ स्ट्रैटेजी इन माइंड विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट जस्ट टेल्स यू दैट शी इज़ नॉट एज गलिबल एंड इनोसेंट एज यू थिंक। नाउ हुआ क्या कि ये भाई पहुंच गई आपकी साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ फकिंग वटेवर, बैंगलोर की लड़कियों की रीड फीड पे, ठीक है, आंटियों की फीड पे जो 30 साल से ऊपर की हैं या फिर जो 25 साल से ऊपर की हैं, जिनको दिखाना है कि वो बहुत ही एम्पैथेटिक है, वर्चू सिग्नल करना है सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने लाइक करके इसको सपोर्ट करना चालू कर दिया, बिकॉज दैट्स वन वे दैट दीज पीपल बिल्ड देयर सोशल इमेज। कि देखो मैं कैसे लोगों को सपोर्ट करता हूँ, तुम वहाँ पे समय रैना के जोक पे हंस रहे हो, मैं लाइफ ऑफ पूजा को सपोर्ट करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे चैरिटी करने आई हूँ, हैं, मैं नहीं देख रही ब्रेन रॉट 6-7, मैं नहीं देख रही ये सब, मैं देख रही हूँ लाइफ ऑफ पूजा को, मैं देख रही हूँ एक स्ट्रगलिंग औरत को पढ़ते हुए रील बनाते हुए, ठीक है, मैं अच्छी औरत हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो उन्होंने दबा के इसको करा शेयर करना चालू, दबा के करा शेयर करना चालू, ठीक है। और फिर उसको देख के बाकी लोग, अरे बाप रे, हमें भी करना पड़ेगा, हमको भी तो दिखाना है कि हम अच्छे कॉजेज़ को सपोर्ट करते हैं, हम एक मूवमेंट का पार्ट है, हम एंटी एंटी ये हैं, हम एंटी वो हैं, हम एंटी सप्रेशन है, हम एंटी वट एवर, कैपिटलिज्म ख़राब है, ये है वो है। तो उन्होंने भी दबा के शेयर करना चालू करा, मिल गई फॉलोअर्स, लेट्स गो लेट्स गो। बट वॉट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इज़ कि even if it's a plan devised by these people and it's deliberate, it still requires a lot of hard work and perseverance and it's not easy. ऐसा नहीं है कि लाइफ ऑफ पूजा फ्री का खा रही है, मेहनत कर रही है, एज अ वुमन मेहनत कर रही है, क्योंकि इसका बच्चा है, ये गांव में रहती है, खाना बनाती है, स्ट्रगल करती है, स्ट्रगल है इसकी ज़िंदगी में, इवन इसकी ज़िंदगी में अभी भी स्ट्रगल होगा, क्योंकि ये गाँव में है, गाँव की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता ही होता है, आप मानो ना मानो, ठीक है, स्पेशली फॉर अ वुमन। So it's like I think her husband and her life of Pooja, both of them realized कि जैसे ही ये इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन ऑडियंस के पास चला गया और उन्होंने उसको वर्चुअल सिग्नलिंग के लिए शेयर करना चालू कर दिया ना, दे रियलाइज कि दे कैन क्रैक दिस एंड देन दे कैन मोनेटाइज इट, एंड देन हर हस्बैंड गॉट बिहाइंड हर and they started using this as a side business. They started looking at this real thing as a side business. Then eventually the content got mundane, क्योंकि कब तक आप किताबें पढ़ते हुए देखोगे इसको, इस पे ना पिट ही नहीं हो पाता। अगर आपको वर्चुअल सिग्नल करना है ना, तो कोई लड़की किताब पढ़ रही है तो इसमें वर्चुअल सिग्नलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उससे ज़्यादा अच्छी होती है अगर उस लड़की को लोग, समाज जो है उसको नीचे धकेल रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, पेट्रियार्की उसको हमला कर रही है, तो ज़्यादा अच्छी वर्चुअल सिग्नलिंग होती है, क्योंकि पिटी तो उन्होंने वो कंटेंट बनाना चालू कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि इसके हस्बैंड का आइडिया, हो सकता है इसका आइडिया, हो सकता है कि इनके मैनेजर का आइडिया, हो सकता है कि जिन कंपनी से आती है कोलैबोरेट कर रही है उनका आइडिया है। आइडिया किसका है मुझे नहीं पता, बट ये डिलिबरेट है, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू कि आपको एक पॉइंट के बाद तो आपको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ऑर्गेनिकली आएगा नहीं गाँव में बैठे बैठे, ठीक है। मतलब क्या गाँव में क्या कंटेंट मिलेगा कि पड़ोसी की बकरी भाग गई है, ये कंटेंट है, कुछ कंटेंट नहीं है गाँव में, लेकिन डेली लाइफ भी मंडेन हो जाती है, बोला तो मैंने, दैट्स द प्रॉब्लम। So your growth you will not grow like you are supposed to. It will be stagnant at one point and people will start losing interest. पिटी भी वो 1-2 बार करेंगे ना, आप 100 बार थोड़ी ना आपके हर बुक रिव्यू को वो उसी नज़रों से देखेंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं काम करता। तो यू नीड टू कीप एंगेजिंग देम, एंड वहाँ पे कोई इंसान, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको पुश कर रहा था ऑब्वियसली, एंड शी टुक एडवांटेज ऑफ इट, एंड नाउ शी हैज़ वट एवर ब्रांड डील स्पॉन्सरशिप, शी इज अर्निंग like 7 lakhs or whatever the fuck. This content is purely, she's giving pretentious people a way to virtue signal, ठीक है। At the same time, is she doing something wrong? Absolutely not. At the same time, जो थेरेपिस्ट थी जिसने इसको कॉल आउट करा, उसकी कुछ बातें सही नहीं थी,
क्योंकि शी अटैक्ड हर एज इफ शी इज evil. She is not evil, she is just smart. He's capitalizing on it. It's the same thing as fucking मुस्कान कारिया. ठीक है, तो सही चीज़ ये है कि लाइफ ऑफ पूजा कोई ख़राब औरत नहीं है, लेकिन ये कोई संत भी नहीं है. ये एक इंसान है, और ये कैपिटलिस्ट सेल्फिश इंसान है, जो इसको होना चाहिए. सबको होना चाहिए, मैं भी हूँ. ठीक है, सबको होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर कोई क्लेम करता है कि लाइफ ऑफ पूजा सेल्फलेस है, या फिर कोई फॉर्म ऑफ, या फिर कोई आर्केटाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, या फिर कोई क्लास कॉन्शियसनेस का सिंबल है, तो नहीं. लाइफ ऑफ पूजा एक कंटेंट क्रिएटर है, और कंटेंट क्रिएटर्स पता है कैसे होते हैं? अनुज MB4 जैसे. ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. रुको मैं आपको दिखाता हूँ. Maybach music. Maybach music. सेम Maybach music. सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. जी, सो जो अनुज MP4 है और जो ये दोनों सेम है. क्या आप उसको नीच बोलते हो? नहीं ना. कैसा भी बनाए कंटेंट बना रहा है, तो इट्स जस्ट अ बिजनेस. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कंटेंट क्रिएशन इज अ बिजनेस. ठीक है, जिनको समाज सेवा करनी होती है ना, वो समाज सेवा करते हैं. ये समाज सेवा नहीं है, और ये प्रिटेंड भी नहीं करी समाज सेवा का. तो यू कैन नॉट टारगेट दिस वुमन. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्पीक टू द ऑडियंस डायरेक्टली. थेरेपिस्ट ने गलती क्या करी जिसके कारण उसको गालियां पड़ी? शी टारगेटेड लाइफ ऑफ पूजा. व्हाट शी शुड हैव डन इज टारगेटेड पीपल हु सपोर्ट हर. लेकिन अगर वो करती तो और गालियां पड़ती, लेकिन दैट वुड हैव बीन द करेक्ट वे टू डील विद इट. क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता कि आपको ये ऐसे पोर्ट्रे नहीं करते कि आप किसी अंडर प्रिविलेज्ड औरत को आप नीचे दबा रही हो. आपने लाइफ ऑफ पूजा को टारगेट कर दिया, तो अब आपको लोग लपेटे में ले रहे हैं कि आपने गांव की लड़की मेहनत कर रही है, आप उसको दबा रही हो. अगर आप ऑडियंस को गाली बकती, तो ऑडियंस तो आपके ही शहर की ना, मुंबई दिल्ली की, वो ये कार्ड नहीं खेल पाते. फिर पर लॉजिक और रैशनल की बात होती है. और उसमें एक और अच्छी बात ये होती कि जो लोग ये चीज़ समझते हैं वो आपको सपोर्ट भी करते हैं. यहाँ आप सही कह रही हैं, ऐसे प्रिटेंशियस लोग. ये मैं लड़की को जानता हूँ, बहनचोद NIFT में आती है, ठीक है, बाप का बिजनेस है 10 लाख रुपए का. अपने एम्प्लॉयज़ को ये लोग 15,000 रुपये नहीं देते, एक्सप्लॉइट करके बैठते हैं. और ये लाइफ ऑफ पूजा की रील शेयर करे जा रही है. अपने पापा से फ़ोन करके इसको नहीं होता कि भाई इनको 2 दिन की छुट्टी दे दें, हैं, इनको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दें. नहीं हो रहा है इनसे. ये लाइफ ऑफ पूजा की रील शेयर कर रही है, वर्चू सिग्नल कर रही हैं. तो जो दिखता है उनको, वो आपको सपोर्ट करते हैं, है ना. बट आपने इसको गाली दे दी, आपने गलत करा, तो आपको लोग गाली बक रहे हैं. दिस इज़ द इंटरनेट. दिस इज़ द इंटरनेट. ठीक है, तो इसीलिए मैं जब लोगों को गाली देता हूँ, मैं उनके ऑडियंस को भी गाली देता हूँ. ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है. क्योंकि वो लोग कभी इस लेवल पे आते ही नहीं ना, अगर उनकी ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती उनको. देयर इज़ ऑडियंस फॉर एवरीथिंग. पुनीत सुपरस्टार को हागा मूता खाते हुए पीते हुए देखने वाली भी ऑडियंस है. और ऑडियंस अच्छी बुरी नहीं होती, ऑडियंस ऑडियंस होती है. ऑडियंस कोई इंसान भी नहीं है. ऑडियंस एक इनविजिबल पावर है, और वो हर तरह की है. तो ऐसा नहीं कि आप उसे गाली दोगे तो आप नेगेटिव कर रहे हो, क्योंकि बहुत तरह की ऑडियंस है. हो सकता है एक पर्टिकुलर ऑडियंस को अगर आप गाली दे रहे हो, तो 10 पर्टिकुलर ऑडियंस आपके पास आके बोले कि हाँ ये सही बात है. अगर आप लॉजिकल हो और आप रैशनल, आपका ठीक ठाक जगह पे है, तो इट वोंट बैकफायर. बट या एनीवे.